3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बताओ। V equals to UT कोई बात नहीं, चंदन U plus 80, second है S equals half 80 square plus UT, third है 2AS equals V square minus U square. ठीक है, आप बताइए। Sir, V is equal to U plus 80, S is equal to U plus half कोई बात 80. नहीं, आप बोलो। Sir, V is equal to UT V is equal to U plus 80, S is equal to UT plus half 80 square, और 2AS is equal to V square minus U square. ठीक है, अरविंद आप बताओ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। Sir, V equal to U plus 80, S equal to UT plus half 80 square, और 2S equal to V square minus U square. देविका V is equals to U plus 80, S is equals to UT plus half 80 square, 2AS is equals to V square minus V square. Okay, now what does it mean by uniform circular motion? Sir, if the object moving in circular path with constant speed is called uniform circular motion. Uniform circular, what do you mean by centripetal force? The object is moving in uniform circular motion. The force acting on object Is always directed is always directed towards center is called centripetal force. centripetal force। जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रही हो, तो वह बल जो उसके केंद्र की ओर उन्मुख है उसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसा कि दिव्या ने बताया, आप रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, If the object is moving in uniform circular motion, the force acting on the object and directed towards the center is called centripetal. बोलो। If the object is चंदन If the object is moving in circular path and a force acting on it towards the center, then the force is known as centripetal force. डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। मयंक In uniform acceleration motion, the force is acting on object and directing towards the center is called यूनिफॉर्म circular- सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नाउ एक चीज पूछ रहा हूं लेकिन बताया नहीं है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। So if the object moving in circular motion and the acceleration acting on object and directed towards center. यस, वही एक्सीलरेशन है, क्योंकि जब फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेशन होगा, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इफ ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द acceleration which is directed towards center is called uniform centripetal acceleration। अब एक चीज आप बताइए, what do you mean by uniform circular motion? Uniform circular motion is the motion in which the object is traveling in the circular path. कोई बात नहीं, आप बताओ बेटा क्या नाम है? Sir, Dishita. बोलो दिशिता, what is uniform circular motion? जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा हो और एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यही यूनिफॉर्म सर्कुलर। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन आपने कांस्टेंट स्पीड नहीं बोला, देविका रिपीट करो। If the object moving circular path with constant speed, it is called uniform circular. यूनिफॉर्म मोशन क्या है? if the object doing in circular सर्कुलर मोशन से क्या मतलब है? आपको यूनिफॉर्म मोशन पूछा If the गया। object covered total distance in equal interval of time, Equal distance- in equal interval of time, then it is known as. चलो कोई बात नहीं, आप बताओ। इन्होंने वन डायरेक्शन नहीं बोला ना, इन्हें ये भी बोलना चाहिए था इन वन डायरेक्शन, इन्होंने कहा टेढ़ा मेढ़ा भी चाहिए। आप बोलो। If the object moving in equal speed and equal interval. अगर स्पीड बोलना है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन, बस इतना ही बोलो। If the object moving in constant speed in one direction. इट इज यूनिफॉर्म मोशन। रिपीट करो। if the object coming
ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। बोलो, बात समझ में आ गई? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? नाउ यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा क्या बताया? यूनिफॉर्म सर्कुलर, मोशन। और तीसरा क्या बताया? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके, और एक चीज क्या बताई? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो अब देविका बताओ यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। If the objects move in one direction with constant speed, then it is called uniform motion. रिपीट करो, क्या नाम है बेटा? 2-3 बार पूछेंगे तभी याद होगा। बोलो। ऋषिता? हाँ? Rishita. सही है, बोलो। Sir, if the object moves in a circular. सर्कुलर से क्या मतलब है? वो ये अलग चीज है। एक समान वृत्तीय गति है, ये एक समान गति है। मैं एक समान गति की आपसे परिभाषा पूछ रहा हूँ, आप एक समान वृत्तीय गति की क्यों बात कर रहे हैं? सर्कुलर की क्यों कर रहे हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है। बोलो, रिपीट करो। If the object cover constant speed in one direction. Moves with constant speed in One direction. बोलो, बात समझ में आ गई? Now, what is average velocity? So average velocity. बताइए चंदन। Average velocity, final velocity plus initial velocity is डिफाइन करिए। So displacement per unit time. हाँ, that is average velocity क्या होगी? Displacement per unit Average velocity, that is displacement per unit time। तो पहली डेफिनेशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन में क्या डेफिनेशन है? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स with constant speed, in one direction. If object moves with constant speed in one direction, then it is called uniform motion. Uniform motion। देविका, सेकंड डेफिनेशन बताओ। If an object move with circular path, बिल्कुल सही है। देखो, if an object move in circular path with constant speed, moves, सही है, circular path with constant speed, with constant speed, then it is called uniform circular motion. then it is called uniform circular motion। ओके, तीसरी चीज कही गई है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देविका? The acceleration on an object directed towards center is called centrifugal. इतना और लिख देना, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन The acceleration. acceleration is always directed towards center and it is called centripetal acceleration। acceleration है ना? तो जैसे कोई चीज ऐसे चल रही है तो इसके ऊपर सेंटर से फोर्स लग रहा है कि नहीं अर्थ पे? और जब बताओ अर्थ के ऊपर सेंटर पे फोर्स लग रहा है, कौन खींच रहा है? क्या ग्रेविटी खींच रही है अर्थ को? तो उसको खींचती जा रही है, तभी तो गोल गोल घूम रही है। तो जहां फोर्स है, फोर्स किसी चीज पे लगाओगे तभी तो एक्सीलरेशन होता है। तो इसमें फोर्स भी इधर डायरेक्टेड है, उसे एफसी कहेंगे, और एक्सीलरेशन भी सेंटर की ओर डायरेक्टेड है, उसे क्या कहेंगे? सर, तो बाहर भी कोई फोर्स होगा पड़ना, तो सर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा होगा वो तो अंदर आके वापस गिर जाएगा। हाँ, जैसे कोई भी चीज है तो अब इसमें ये इधर जाना चाहता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अगर कोई चीज कहीं पर जा रही है, जैसे ये देखो, ये अर्थ, ये सन है और अर्थ यहाँ बहुत दूर से आ रही है, ये देखो, और इधर आती जा रही है। बोलो, क्या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपको मालूम है कि कोई चीज सीधी चल रही है तो वो सीधी ही चलती चली जाएगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो जब ये इसके पास से गुजरी तो सन ने इससे कहा, जाती कहाँ हो, मेरे पास आओ, ऐसे बोली।
तो अब इस पे फोर्स इधर लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जा इधर रही थी। अब जैसे कोई भी फुटबॉल ऐसे जा रही हो सीधे सीधे, और कोई इस पे फोर्स उधर लगाया, इधर लगाता जाए तो मुड़ नहीं जाएगी। लेकिन फिर ये कहेगी नहीं अब तो हम ऐसे जाएंगे, और सन वहां है, सन ने कहा नहीं मेरी तरफ आओ, तो फिर मुड़ी। अब ऐसे जाने लगी तो फिर मुड़ी। बात समझ में आई? फिर से देखो, तो अब ये बोलो इधर जा रही थी, फोर्स इधर लगा, तो कोई फुटबॉल सीधे जा रही हो, किसी ने इसको उधर मार दिया तो तिरछी नहीं जाएगी। तो अब बोलो किधर जाएगी? क्या इधर चली जाएगी? लेकिन अब ये इधर भी नहीं जाएगी, क्योंकि इधर इसका इनर्शिया है, ये इसकी टेंडेंसी है कि एक ही डायरेक्शन में जाना। लेकिन सन फिर क्या करेगा बोलो? फिर से फोर्स लगाएगा। तो अब ना ये इधर जाएगी ना इधर जाएगी, बीच में जाएगी कि नहीं? भाई इसी टेबल को कोई इधर खींचे और इधर खींचे तो इधर जाएगी कि इधर जाएगी? बीच में। तो इधर इसकी स्पीड थी और इधर फोर्स था तो बीच में गई। इधर इसकी स्पीड थी, इनर्शिया और डायरेक्शन होता है कि नहीं, और इधर फोर्स था, बीच में चली गई। तो बोलो ये क्या सर्कुलर पाथ में नहीं चल रही? और अब यहाँ पे अर्थ आ गई, फिर ये इधर जाना चाहती थी तो इसने खींच लिया, तो ऐसे नहीं गई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से कॉन्स्टेंटली इस पर एक फोर्स लगता रहता है और ये मूव करता रहता है। तो क्या लिखते हैं? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंटेंस कंप्लीट करो। Sir, in uniform circular motion, the acceleration directed towards the center is known as centripetal acceleration. सही है। डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। दिशिता, यस सर। मुझे ये बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन इसी से बनाओ। सर किसकी? सेंट्रीपिटल फोर्स। मयंक, Sir, in uniform motion, the यूनिफॉर्म मोशन नहीं, वहां से बनाओ। श्रेया, in uniform circular path. ऐसे ही बोलो, इसी से। Sir. हाँ बोलो। In uniform circular motion, the force acting on object and directed to the towards center is called centripetal. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, फोर्स विच इज डायरेक्टेड, ऑलवेज डायरेक्टेड towards center is called uniform centripetal force। क्या कहेंगे? centripetal force। now दिशिता, एवरेज वेलोसिटी, यानी कोई भी चीज मान लो यहां से ऐसे गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि नहीं? तो ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 10 मीटर हुआ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, और ये 2 सेकंड में हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड में हुआ? तो श्रेया मुझे बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? Displacement. कोई बात नहीं, आप बताओ कितनी होगी इसकी एवरेज वेलोसिटी? Sir, 5 meter per second. 5 मीटर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन। Time. तो अब मुझे डेफिनेशन बताओ। Displacement per unit time. ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी। इतनी बात समझ आ गई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल दो। The earth moving around sun. चलो, जैसा कि आपने बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका एग्जांपल क्या हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक और एग्जांपल दो अरविंद। मून, दैट इज अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है कि रिवॉल्व? रोटेट। और सन के चारों तरफ क्या करती है? तो रोटेशन और रिवोल्यूशन का भी अंतर समझो।
ये अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट, और ये सन है, तो सन के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व। तो क्या बोलोगे, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। और दूसरा चंदन एग्जांपल दो। Moon revolving on the orbit हाँ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड सन। ये बिल्कुल ठीक कहा। और दूसरा एग्जांपल ये भी दिया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड nucleus. सो अगर इलेक्ट्रॉन है, वो sphere में होता है. अगर एक एटम में क्या होता है, ये सेंटर पे न्यूक्लियस होगा कि नहीं, ये एटम है, पर वो सर्कुलर पाथ तो नहीं है ना, कौन सा है, सर्कुलर, लेकिन सबकी अलग अलग ऑर्बिट है, स्पेशल पाथ. है स्पेशल, लेकिन एक स्पेशल रेडियस का है सर्कुलर। चाहे बोर वाले का लोगे तब भी सर्कुलर ही है, उसका एक रेडियस होता है, ठीक है कि नहीं, वो हम लोग अब इस बार देखेंगे। तो आपके में एक चैप्टर दिया भी गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये क्या है कि रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल दो चंदन। यूनिफॉर्म मोशन. अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन ये बिकॉज बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि अगर अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी तो उसकी डायरेक्शन ही बदल जाएगी। अच्छा, पिछली विभाग में ये छिपा गए थे, डायरेक्शन नहीं बोले थे। इनके मन में एक तरीके का प्री ऑक्युपाइड है कि डायरेक्शन तो बदलेगी, वहाँ ये समझौता नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अर्थ के केस में भी इसको ये यूनिफॉर्म मोशन बोलना है। सो वो यूनिफॉर्म बहुत बड़ी बात है कि यूनिफॉर्म मोशन में कह रहे हैं मुड़ना भी चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में कोई चीज सीधी जा रही है तो सीधी ही जाए और लौटे भी नहीं। तो इसका क्या मतलब है, अ प्लैनेट मूविंग इन इंटरस्टेलर स्पेस फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, कोई एक ग्रह अंतराण्विक आकाश में और अनंत दूरी तक अपनी गति से चला जा रहा, उसके चारों तरफ कोई दूसरा ग्रह या कोई उपग्रह ना, एनी सैटेलाइट और प्लैनेट या स्टार ना। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? ऑब्जेक्ट मूविंग इन कांस्टेंट स्पीड। तो एग्जांपल बताइए। सर, A planet moving in interstellar space free from gravity। सही है। A planet क्या लिखोगे, moving in interstellar space free from gravity। अगर इतना ही जानती हो तो व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन? चंदन हाथ उठा रहा है, पहले बता दो। लोग उन्होंने भी हाथ उठा दिया। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल देखिए, दिव्या ने भी हाथ उठा दिया। अच्छा ना, वो भी तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है. देखो चंदन ने पहले बता दिया, बोलो चंदन। Using motorcycle with non-constant speed, changing its velocity. आप भी बोलो। हाँ देविका, इन्होंने भी हाथ उठाया। चंदन की बात मानी गई। इन्होंने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरता है, बहुत बड़ी बात कही है, तो उसको अर्थ किस एक्सीलरेशन से अपनी ओर खींचती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी श्रेया ने भी यही बताया। किस क्या हर सेकंड बाद उसकी इतनी ही स्पीड बढ़ जाती है? No, sir. लो देखो, बोला कि नहीं? सर उसकी स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा यही एक्सीलरेशन है। कितनी एक्सीलरेशन है? हर सेकंड में कितनी बढ़ जाती है बोलो? अगर 0 से चली तो एक सेकंड बाद 9.8 मीटर पर सेकंड, फिर एक और सेकंड बाद इतना और जोड़ दो, फिर एक और सेकंड बाद, हर सेकंड, तो उसका एक्सीलरेशन क्या यूनिफॉर्म है? तो दैट इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कौन सा एग्जांपल हुआ बताइए? A ball is falling from a height
फ्री फॉल, सीधा बोलो, बोला सर फ्री फॉल बोलिए, ये नहीं कि पटका गया, नो सर, उन्होंने बोला सर फ्री फॉल बोलोगे तभी मानूंगी। क्या बोला श्रेया ने? दैट इज ए बॉल फ्रीली फॉलिंग ऑन ग्राउंड अंडर ग्रेविटी। क्या बोला, रिपीट करो। A ball is freely falling on ground under gravity. अब बॉल, और उस पर एक्सीलरेशन कितना एक्ट करेगा? 9.8. Magnitude of 9.8 meters. A ball freely falling down under gravity। बात समझ में आ गई? तो 3 एग्जाम्पल आपको बताए गए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल बताओ। A ball moving. A बहुत ball बड़ी बात है। freely falling from. इतने में ही काम बन गया, बोलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Earth revolving around the sun. हाँ, इन इट्स ऑर्बिट। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल बताओ मयंक। A planet moving in interstellar space. ठीक है, फ्री फ्रॉम ग्रेविटी। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल बताओ। यानी उस पर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म। A ball free falling on the ground under the gravity. सही। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा, और सेकंड क्वेश्चन क्या है? गिव वन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड तीसरा क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। चलो So, uniform motion का और example. So, बस क्या है? एरोप्लेन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन, ये हो सकता है। या ट्रेन मूविंग Sir, इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। sir, वो आपने uniform circular motion जो बोलते हैं points लिखे, sir, वो आपने revolution लिखा है। ये तो हमने ये दिखा दिया है, रोटेट और ये रिवॉल्व, ये रिवोल्यूशन है, परिक्रमा, और एक अपनी अर्थ एक्सिस पर उसका घूर्णन होता है, रोटेशन। हो गया, अब मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं। v is equals to u plus at, that is s is equals to ut plus half at square, और 2as is equals to v square minus, जहां पर u क्या है? Sir, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? Final velocity. a एक्सीलरेशन। ये कांस्टेंट होना चाहिए, अगर कांस्टेंट है तब ये फार्मूले हैं, अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन है तो ये नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जब ये प्लॉटिंग की थी v और u के बीच में, तो शर्त क्या रखी थी?
ये कैसा होना चाहिए था, लीनियर। और लीनियर किसके लिए होता है, क्या कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। अच्छा, वेरिएबल एक्सीलरेशन के लिए आप लोग 10th में पढ़ोगे, 9th में नहीं है आपके पास पढ़ोगे। तो ये एक्सीलरेशन कौन सा है, हर बार टीचर आपसे पूछेगा, वाइवा भी होगा, ये इक्वेशंस किसके लिए हैं, तो आप हाथ उठा देना, सर इट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। वहीं आपकी जीत है कि ये सिर्फ तभी तक वैलिड है जब एक्सीलरेशन बदलता नहीं है। अगर कोई बॉल फ्रीली ग्राउंड की तरफ गिर रही है तो क्या ये फार्मूले वैलिड हैं, Yes, sir. क्योंकि क्या वो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, Yes, sir. उसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही, समझ में आ गया। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए भी ये फार्मूले वैलिड, सही है। अच्छा, अब जरा देखो, ये एक्सीलरेशन हो गया, v और t क्या है, टाइम, कि जितने टाइम तक फोर्स लगाया गया। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जमा करिए। अब मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सीलरेट, तो एक मोटर बोट है वो स्टार्ट करती है एक लेक पर, ठीक है, एंड इट इज, मान लीजिए लेक पर एक्सीलरेट करेगी और इसके पीछे क्या है, कुछ इंजन लगा हुआ है, तो ये एट रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और एट रेस्ट से ये एक्सीलरेट करेगी। और कितने समय तक एक्सीलरेट कर रही है ना। अब देखिए, तो इसका u कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनली ये एक्सीलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक। बात समझ में आ गई। यदि ये 0 से स्टार्ट करे दिव्या और 8 सेकंड तक चले, तो क्या तुम बता सकती हो 8 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी। बहुत बड़ी बात कही आपने, करके दिखाओ। लो ये बता दिए उतनी देर में, बोले हर सेकंड में 3 बढ़ रही है, 24 हो जाएगी। ये होते हैं जीनियस बच्चे। कितना देखो इन्होंने कहा कर दो, कितनी बड़ी बात कह दी। और कोई होता तो 24 बोल दे, सर बोर्ड पे करूं, लो है बात की नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं हर सेकंड में कितनी बढ़ रही है, और 8 सेकंड चला, 0 से 3, 3 से 6, उन्होंने कह दिया 3 बढ़ाते चले जाओ सर, कुछ बात नहीं है। समझ में आ गई बात की नहीं, एक्सीलरेशन समझ में आया। 3 हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ेगी, 3 मीटर पर सेकंड, और 0 से शुरू हुई है, तो 1 सेकंड बाद 3, अगले 1 सेकंड बाद तो 3 का टेबल हो गया कि नहीं। तो लेकिन ये हमें करके दिखाना होगा, जैसा चंदन ने बताया। तो अब यहाँ पर ये मोटर बोट आ गई। अब जरा देखो क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। सर पहले वेलोसिटी, सर, फाइनल velocity वेलोसिटी पूछी निकाल गई देते थी। हैं। सर डिस्टेंस अच्छा, डिस्टेंस पूछी गई है, इसमें इन्होंने कहा s कितना होगा। सर 24 तो नहीं होगा इसका, देखो नहीं। नहीं, 24 तो उसकी स्पीड होगी, क्या स्पीड ही डिस्टेंस होगी। जो तुम्हारी स्पीडोमीटर में 60 दिखा रही, क्या तुम घर से उतना ही चल रहे, वो थोड़ी होता है, वो तो तुम्हारी स्पीड है, फाइनल वो तो बदलती रहती ना, बाजार में जाओगे कम हो जाएगी, लेकिन घर से कितना चले होगे वो तो अलग चीज होती है ना, वो डिस्टेंस होती। तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं श्रेया। So s is equal to ut plus half a. u भी है, ut और प्लस हाफ at स्क्वायर, और s निकल आएगा कि नहीं। तो बोलो s क्या हुआ, ये वाला लगाना हो सके, दैट दीज आर, इनको क्या कहते हैं, ऑफ मोशन। तो s इज इक्वल्स टू ut और प्लस हाफ, u कितना है, क्या 0 है, t कितना है, 8, हाफ, a कितना है, 3 है। तो ये 3 है, देख लो, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितना है, मैं यूनिट के साथ भी करके दिखा दूं। और ये कितना है बोलो, 8 सेकंड है, तो यहाँ लिखो 8 सेकंड और उसका स्क्वायर करो, सही। बोलो ये तो 0 हो गया। अच्छा, हाफ लिखिए इंटू 3 लिखिए, और 8 का स्क्वायर क्या हुआ, 64। और बोलो ये चीज क्या थी, क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके साथ क्या आया, क्या सेकंड का स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर और -2 कट जाएगा, क्या ऐड कर लो पावर, है ना। तो अब 2 से इसको कट करो तो क्या हो गया, 32।
2 से कर दिया 32 3 जा 96 और मीटर बचा कि नहीं। और जिसको नहीं करना हो तो ये सब मत करें मीटर पर सेकंड, सीधा मीटर लिख दे, इन सब की जरूरत नहीं। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ यूनिट से भी यूनिट निकल आती है। तो स्क्वायर किया तो इससे कट गया कि नहीं। तो कितना हुआ, द बोट हैज मूव्ड 96 मीटर इन 8 सेकंड। ये इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। कितना डिस्टेंस चली, 96 द बोट हैज मूव्ड 96 मीटर इन 8 सेकंड। अगला देखिए ना, अभी 7th क्वेश्चन करो, ग्राफ के अलग से कराएं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। तो 20 मीटर से हमने सिर्फ, अगर आप सिर्फ गिरा दें तो क्या वो फ्री फॉल होगी, Yes, sir. क्योंकि वो प्योरली अंडर ग्रेविटी गिरेगी। तो अ बॉल इज, अगर आप जेंटली ड्रॉप्ड करेंगे श्रेया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। Sir, 0. सही है, क्योंकि आपने सिर्फ छोड़ा है। तो यू कितना हो गया, अच्छा। और क्या इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी लगातार। वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन बुक कह रहा है आप रफली ले लो। तो रफली वो कितना कह रहा है, 20 तो नहीं कह रहा। आप देखो एक्सीलरेशन कितना कह रहा है, Sir, 10 meter. 10 कह रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड बढ़ रही तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। अगर बॉल ऊपर उछालती तो यही क्या होता, क्या रिटार्डेशन होता, Yes. क्योंकि अब उसकी स्पीड घटती, ग्रेविटी नीचे खींचती। कोई चीज अगर उल्टा खींचे, हम जा उधर ना, कोई आपकी बाइक पीछे खींच ले, तो क्या ये रिटार्डेशन नहीं होगा। तो इस, अगर ऊपर फेंकोगे तो इसको निगेटिव लेना, और अगर नीचे गिराओगे तो पॉजिटिव लोगे। ये एक्सीलरेशन। और क्या दे रहा है बताओ, कितनी हाइट तक, ये किस हाइट से गिराएगी ये बॉल, 20 मीटर हाइट से गिराएगी। बोलो ये चीज इतना 20 मीटर होता होगा कि नहीं, बहुत बड़ी होती है। वो दिव्या को पता है, कहने 3 मीटर है, कहाँ आप 20 बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बोले 1 मीटर का एक आदमी, अब 3 आदमी है तो 2 भी नहीं खड़ा हो सकता। तुरंत बोले सर ये 3 मीटर है, ऐसी 6 मंजिल लोगे तब होगा 20। कितनी प्रैक्टिकल है, तारीफ हुई कि नहीं। इन्होंने कहा ये कितना मीटर है, एक कमरा 3 मीटर का होता है, और 6 मंजिल कितने की हुई, 18 हुई, 7 मंजिल लो तब 21 हुआ। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो कितने मंजिल इमारत से, हाउ मेनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इट इज ड्रॉप, द 7th फ्लोर ऑफ एनी बिल्डिंग इट इज ड्रॉप। तो 20 मीटर हो जाएगा कि नहीं। चलो, तो हमने इसको गिरा दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सर निकल गया। सो at the rate of, with what velocity will it is 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हेलो। होगा 2 सेकेंड। हाँ राम राम राम। हाँ 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 पहुँच गए सब, ठीक ठीक ठाक पहुँच गए। हाँ ठीक है सर। हाँ 2 बजे छूट जाएंगे बस। ठीक, राम। सो क्या चीज पूछी जा रही है, with what velocity it will strike on ground and after what time it is striking on ground। 2 चीज पूछी गई है। सर टाइम 2 क्या ये यहाँ गिरेगा? 10 मीटर तो पर ये गिरेगा तो कोलिजन होगा कि नहीं, तो उस समय इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। यस पूछ रहा है उस वेलोसिटी को भी बताओ, और यहाँ से अगर हम 7वीं मंजिल से गिराएं तो समय क्या लगेगा। अब देखो हमारे पास u और a ही तो है, तो दिव्या बताओ मैं इसमें कौन सा फार्मूला लगा दूं कुछ पाने के लिए। सर थर्ड वाला लगाओ। Sir, 3rd. Yes, sir. थर्ड लगाएं, और s भी है, s हो गया। तो आप इन्होंने कहा थर्ड लगा दो, चंदन ने और श्रेया ने भी और कहा फिर सर फर्स्ट लगा दो। फर्स्ट भी लगा दे। चलो Yes. v इज इक्वल टू u प्लस 80। नहीं आ पाएगा, इससे कैसे आएगा, v भी नहीं पता है। सर वो बाद में लगाना है। अभी नहीं लगा सकते ना। Sir, 2 पहले 3rd वाला लगेगा, फिर चलो। 1st। मैं सेकंड लगा देता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस, बोलो s कितना है, 20 लगाओ। u t नहीं पता,
ए कितना है, टी नहीं पता नहीं ना, इसमें टी तो पता करना है। हाथ का टेक बेटा मत लगाओ दिशिता, फिर उससे एफिशिएंसी कम होती है, सही है। तो 20 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर हुआ, सही है। 5 को यहाँ ले आओ तो ये t स्क्वायर, ये 4 आ गया। तो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो चंदन बताओ t कितना हुआ, 2 सेकेंड। मयंक बताओ, भाई कोई ना कोई तो बता ही लेगा। 2 अगर रोक कर जाएगा। अच्छा पूरा था, ये बता। अच्छा मतलब जैसे चंदन ने कहा सर टी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, रूट डाल दो। तो चंदन के मन में ये बात क्यों आई कि टी सर 2 भी हो सकता है और -2 भी, भाई किसी चीज का सलूशन हो, ये बात चंदन ही के मन में क्यों आई? और सब लोग तो 2 बोल रहे थे, चंदन ने क्यों 2 वैल्यू बताई? चंदन ने कहा जब भी किसी चीज का स्क्वायर रूट लगाओ सर तो प्लस माइनस भी तो लगा दो, क्योंकि सिर्फ रूट नहीं लगाया जाता। आप यही देखो, अगर टी स्क्वायर 4 है तो टी की जगह क्या क्या रखो तो 4 आए। तो इसके हमेशा 2 आंसर होते हैं, एक नहीं बताना चाहिए। और -2 हम फिर डिस्कार्ड करेंगे, रिजेक्टिंग निगेटिव वैल्यू, क्योंकि टाइम निगेटिव हो नहीं सकता। तो आंसर कितने हुए बताओ, 2 हुए कि नहीं? दोनों सही है कि नहीं? तो मैं यहाँ क्या लिखूं, t इज इक्वल्स टू ±√4। अच्छा √4 क्या होता है, 2 दैट इज 2 होता है, 2 × 2 का जोड़ा बना तो 2 हो गया कि नहीं? ठीक, तो इट इज t इज इक्वल्स टू 2 लिखो सेकंड, और यहाँ क्या लिख दो, रिजेक्टिंग निगेटिव साइन। अब बोलो टाइम आ गया, बताओ उसको कितना समय लगेगा नीचे गिरने में। अगर तुम 7वीं मंजिल से कोई बॉल गिराओ तो उसको 2 सेकंड लगेगा, और कोई पत्थर गिराओ देवी का तो ये ज्यादा ठीक बोलना। कह रहे हैं इससे इसमें मास का कोई मतलब ही नहीं, ये तो सब पे ग्रेविटी 10 ही लगा रही। तो इन्होंने कहा पत्थर गिराओ, कुछ भी गिराओ, सब एक ही स्पीड से गिरेगा, 2 ही सेकंड लगेगा सबको। ये बात किसने बताई थी? गैलीलियो करके दिखाया उन्होंने। पिज़ा की मीनार ना जो झुकी हुई है, लीनिंग टावर, वहां से गिरा के दिखाया, बोला देख लो सब एक ही स्पीड से गिरा। बड़ा पत्थर छोटा पत्थर गिरा दिया, सारी दुनिया अचंभित रहेगी। ये काम गैलीलियो ने किया। अब समझ में आ गया, यहाँ मास है ही नहीं, तो मास का कोई लेना देना है। अब देखो टी आ गया, अब टी आ गया तो क्या आपको वी चाहिए? अब फर्स्ट इक्वेशन, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस u कितना है, क्या 0 है? a कितना है और t कितना है 2। सो अब यहाँ देख लीजिए, फिर से मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की क्या यूनिट होती है, और t क्या 2 सेकंड है। बताओ 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा क्या? ये सेकंड है ना, तो इस सेकंड से 1 सेकंड कट गया, तो क्या आ गया बताओ? 10 टू 20 तो दिस इज v इज इक्वल्स टू, 20 अच्छा मीटर आ गया, नीचे क्या 1 सेकंड बच गया, तो 20 मीटर। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड एंड इट विल रीच द ग्राउंड इन 2 सेकंड। क्या लिखोगे? जस्ट बिफोर hitting the ground its final velocity is 20 meter per second and it will take 2 seconds to reach on ground। अच्छा, अब आप हमें क्वेश्चन 4 और 7 करके दिखाएं।
ये प्लस माइनस साइन लगाना है, ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, स्टेट which of the following situations are possible and give an example for each of these cases. So a part, an object with a constant acceleration but with zero velocity, बोलो acceleration तो हो but velocity zero हो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 0 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन होगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बट वेलोसिटी जीरो। अच्छा उससे Sir, हाँ यूनिफॉर्म वो बता दे। If an object is released, just released from a height, तो उस समय उसका जीरो स्पीड है और क्या उस पे 9.8 का एक्सेलरेशन लग रहा है ना? constant. अगर उसको किसी हाइट से तुम फ्री फॉल कराओ तो जिस समय तुम छोड़ रहे होगे तो उस समय क्या उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और क्या उस समय भी उस पर एक एक्सीलरेशन लग रहा हो। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट तो उस समय यू क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इफ ऑब्जेक्ट इज just released from a height under gravity and it is falling under gravity and it falls under gravity, तो उस समय उस पर क्या होगा जीरो वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। Now, an object moving in a certain direction with an acceleration in a perpendicular direction, चंदन किसी डायरेक्शन में चल रहा हो लेकिन एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर, Sir, बोलो। uniform circular motion. बहुत अच्छी बात कह रही है, देख लो। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर कोई चीज चल रही है, ये देखो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्या वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस समय इसकी वेलोसिटी किधर है और बोलो इस पर एक्सीलरेशन किधर है, क्या सेंटर की ओर। हमने बताया था कि नहीं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो क्या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए तो इस समय इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी इधर होगी लेकिन एक्सीलरेशन उसको सीधा नहीं जाने देगा, वो क्या करेगा, ये भी तो परपेंडिकुलर है, क्या हर समय इसका एक्सीलरेशन इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। यदि ये यहाँ आ जाए तो अब इस समय बोलो ये किधर जाने को होगा, Sir, लेकिन इस समय भी क्या इसका एक्सीलरेशन सेंटर की ओर होगा। तो ये चीज है जैसा कि मैंने बता दिया। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन the velocity and acceleration are perpendicular to each other। बोलो रिपीट करो सेंटेंस को, मयम रिपीट करिए। In uniform circular motion, velocity and acceleration are perpendicular to each other. ठीक है, एक्सीलरेशन लाइए, एक्सीलरेशन तो ये जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है। टेंजेंट जानते हो किसी चीज पे, अगर सर्कल है तो सर्कल पर अगर मैं कहूँ टेंजेंट बनाओ तो ये टेंजेंट होता है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, टेंजेंशियल हो गई यानी इस डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन से सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो सिंपली ये लिख देना इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा इन्होंने बताया है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रिपीट करो। circular motion, the velocity and acceleration is perpendicular to each मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन are
perpendicular to each other. एक इसका और पार्ट है सी, कुछ बुक में है कुछ में नहीं. An object moving in certain direction with an acceleration in perpendicular direction. Chandan. An object moving in a certain direction with acceleration in uniform circular motion the सही है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में चलता है और एक्सीलरेशन का परपेंडिकुलर नहीं होता. तो थर्ड का भी आंसर यही हुआ कि नहीं? देखो, ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन एंड एक्सीलरेशन देविका परपेंडिकुलर. तो ये कौन सा केस हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति. 10th क्वेश्चन देखो. 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जैसे मून अर्थ का क्या है? कौन सा सैटेलाइट? नेचुरल. और मान लो जैसे आर्यभट्ट और तुमने इनसेट 1 इनसेट 2 ये सब छोड़े हैं, तो वो सारे क्या है? आर्टिफिशियल. जो किसी भी प्लेनेट का चक्कर लगाए वो सैटेलाइट है. तो जो हम खुद छोड़ेंगे वो भी तो हमारे अर्थ का ही चक्कर लगाएगा, वो आर्टिफिशियल. ठीक है. तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, और ये सैटेलाइट है और ये इसका चक्कर लगा रहा है. अब जरा देखिए, ये अर्थ हो गई. इसमें क्या बात कही गई है? इसका रेडियस क्या है जिस ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहा है? बोलो. 4250 किलोमीटर. ये तो इसका रेडियस हो गया. हाँ. तो फिर इसकी सरकमफरेंस क्या हुई? 2 pi. तो सरकमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर. 2 इंटू 22/7 और आर कितना हो गया? 42250. ओके. और 24 आवर्स जो भी सैटेलाइट्स होते हैं, जो वो अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो वो अर्थ के साथ साथ ही रोटेट करेगा, भारत के ऊपर रहेगा. भाई इतना पैसा खर्च किया तो पूरी अर्थ 24 घंटे में, तो इसको भी क्या चाहिए? 24 ही घंटे में रोटेट करे, तभी तो भारत के ऊपर का मौसम का हाल बताएगा. तो जो सैटेलाइट होते हैं अर्थ के साथ साथ ही घूमे, उनको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. हमारे जियो के ठीक ऊपर स्टेशनरी, उसको क्या कहेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. So the satellite which moves along Earth and always remains, ठीक है, up straight to the country, उसी के ऊपर लोकेटेड है, तो उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे. तो ये 24 घंटे में चक्कर लगा लेगा. बात समझ में आ गई? अब इसकी वेलोसिटी क्या हुई? उसने बोलो एक चक्कर कितनी देर में लगाया? 24 आवर्स में एक चक्कर लगाया, 1 राउंड. और एक चक्कर की डिस्टेंस कितनी है? बोलो. यही है. 2 pi. तो डिस्टेंस मूव्ड इन 1 राउंड, यही है कि नहीं? एंड टाइम टेकन फॉर 1 राउंड 24 आवर्स. ये क्या है? डिस्टेंस मूव्ड इन 1 राउंड, ये है. और टाइम टेकन फॉर 1 राउंड क्या है? सो टाइम टेकन फॉर 1 राउंड क्या वो 24 आवर्स है? और अगर स्पीड चाहिए तो क्या मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना चाहिए? तो इसकी स्पीड ही पूछी गई है, एवरेज स्पीड. तो डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितनी है? इन सबको मल्टीप्लाई करो. 2 का 22 में मल्टीप्लाई कर लो. ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कर लो. और अपॉन 7, इतना तो कर सकते हैं ना. तो बोलो डिस्टेंस में क्या क्या लिखूं? 44 इंटू 42250 और अपॉन 7. अब किससे डिवाइड कर दूं? तो 24 से कर दिया. टाइम है तो यहाँ लिखा कि नहीं? बोलो अगर डिवीजन है तो, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन में बदल जाए तो क्या होता है? रेसिप्रोकल होगा. ठीक है. तो 44 इंटू 42250 अपॉन 7 इंटू 1 बाई
24 हो गया। अब हम इसको आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो इतनी बात देखो, 24 है, 24 को 4 से करो, 6 आ गया, 6 आ गया, और इसको करोगे तो 11 आएगा, 4 से करो, सही है। 6 क्या इससे कट सकता है, तो 2 से काटो, यहाँ 3 आया, 2 से इसको काटो, तो 2 1 1 2 5। अच्छा 7 3 जा, और ऊपर क्या आ गया बोलो, 2 1 1 2 5, और नीचे कितना आया, तो 3 से कट जाएगा 2 1 1। वो कट नहीं रहा, सबका सम करो, वो 3, जब सम 3 से नहीं कटता है तो वो नंबर भी 3 से नहीं कटता। जरा देखो 3 4 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटा ना। चलो 21 से डिवाइड करो, 2 1 1 2 5, 21 बन गया। एक डिजिट उतारा, क्या गया, तो 0 बढ़ाओ, एक डिजिट और उतारो, अब गया क्या, और 0 बढ़ाओ। देखो एक डिजिट उतारा तो नहीं गया ना, एक और उतारा फिर भी नहीं गया, अब एक और उतारो, तो 21 21 पंजे 121, 5 कम 5 दूना 10, 6 टाइम्स लेगा, 6 कम 6 6 दूना, थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन चलेगा ना, इतना चल जाएगा। या आप 5 टाइम्स ले जाओगे तो 9 आएगा, 5 टाइम्स ले जाओगे तो कितना होगा बोलो, 105, तो कितना बचेगा, डेसिमल लगा के 0 लगाओ तो 189 आ गया कि नहीं, सही है। तो ये कितना हो गया बोलो, 5.9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये चीज किलोमीटर में है और ये चीज किस में है, तो ये आ गया। अब अगली क्लास में इन दोनों क्वेश्चंस को आपसे कराऊंगा, ओके, इसको नोट कर लो। कल 9 बजे इंग्लिश की क्लास होगी, इंग्लिश का। सर 11 से मल्टीप्लाई किए क्या हो? अब देखो ये भी तो गड़बड़ हो गई, 11 तो रह ही गया, तो बताना चाहिए। अब 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 11 से करो तो 2 1 1 2 5 और 2 1 1 2 5, कितना हो जाएगा, 5 7 3 2 3 2, तो 2 3 2 3 7 5 और डिवाइडेड बाई 21। अब लिखो, दैट इज 2 3 2 3 7 5, 21 बन जा, तो ये 22 बचा, फिर 1 और आएगा, अब ये 1 बच गया, फिर 3, अब 7, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स, फिर कितना बच गया, 115, तो क्या ये 5 बार गया, और फिर 10 बच गया, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, लगभग 5 बार जाएगा, क्योंकि 105 थोड़ा सा ही तो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया बोलो, किलोमीटर पर आवर, इसको नोट लिखो।